Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 105 Introduction to Comparative Government Unit 12 Role of Communist Party in China. Examine the role of Communist Party in the political system of China. The Communist Party of China CPC is the most important political institution in China. It plays a central role in governing the country and guiding its political, economic, and social development. Since the establishment of the People's Republic of China in 1949 under the leadership of Mao Zedong, the Communist Party has remained the dominant force in Chinese politics. Unlike democratic countries with multiple political parties, China follows a one party system in which the Communist Party holds supreme authority. सुप्रीम अथॉरिटी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी चाइना की सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल संस्था मतलब इंस्टीट्यूशन है। वन पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक देशों की तरह जहां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, चाइना में एक ही पार्टी का रूल चलता है जिसे वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। यहाँ सीपीसी के पास सुप्रीम मतलब सबसे बड़ी पावर होती हैं। हिस्ट्री क्या है इनकी? 1949 में मेओ जेडोंग के लीडरशिप में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक चाइना की पॉलिटिक्स पर इसी पार्टी का दबदबा है। द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1921 एंड ग्रेजुअली emerged as a powerful political organization. After a long struggle against internal and external forces, it came to power in 1949. Since then, the party has been responsible for shaping China's political institutions and development strategies. The ideology of the party is based on Marxism, Leninism, Mao Zedong thought, and socialism with Chinese characteristics. ओरिजिन क्या था इसका? सीपीसी की स्थापना साल 1921 में हुई थी। इंटरनल मतलब अंदरूनी और एक्सटर्नल मतलब बाहरी टकाटक से भी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये 1949 में पावर में आई। पार्टी की पूरी विचारधारा में मेन रूप से इन पर आधारित है। किस पे? मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, मेओ जेडोंग थॉट और थर्ड सोशलिज्म विद चाइनीज़ करेक्टरिस्टिक्स। चाइना के हिसाब से दलाहू समाजवाद। इसी विचारधारा के दम पर पार्टी देश के पॉलिटिकल संस्थाओं और डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को चलाती है। पॉलिटिकल लीडरशिप third, one of the most significant roles of Communist Party is political leadership. The party controls all major institutions of the state, including the government, military, judiciary, and media. Important policy decisions are made by party organizations such as the National Congress, Central Committee, Politburo, and Politburo Standing Committee. Government officials at different levels are generally selected and supervised by the government. As a result, the Communist Party exercises considerable influence over all aspects of governance. सीपीसी देश के सभी बड़ी संस्थाओं को कंट्रोल करती है, जैसे कि गवर्नमेंट, मिलिट्री, जुडिशरी, मीडिया, सब कुछ। डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ देश के सारे बड़े फैसले पार्टी के अंदर के कुछ बड़े ग्रुप्स लेते हैं, जैसे नेशनल कांग्रेस, नेशनल कमेटी, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। ये सबसे पावरफुल बॉडी होती हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलग अलग लेवल्स पर काम करने वाली सरकारें ऑफिशियल्स को चुनने और उन्हें सुपरवाइज करने का काम भी पार्टी ही करती है। इसलिए गवर्नेंस के हर एक पहलू, हर एक एस्पेक्ट पर सीपीसी का पूरा असर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे, द पार्टी ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. During the early years of Communist Party, China followed a centrally planned economy. However, under the leadership of Deng Xiaoping in the late 1970s, economic reforms are introduced.
These reforms encouraged market-oriented policies while maintaining Communist Party control over the political system. As a result, China experienced rapid industrialization, economic growth, and modernization. Today, the party continues to guide economic planning and long-term development goals. शुरुआती सालों में चाइना की इकनॉमी पूरी तरह से सेंट्रली प्लान्ड थी। सरकार तय करती थी क्या बनेगा और क्या बिकेगा। फिर डेंग जियाओपिंग्स रिफॉर्म्स आ गया। लेट 1970s में डेंग जियाओपिंग के आने के बाद बड़े बदलाव हुए। उन्होंने मार्केट ओरिएंटेड बाज़ार के हिसाब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए। इन रिफॉर्म्स में बिजनेस को आज़ादी तो दी गई, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल पॉलिटिकल सिस्टम पर बनाए रखा गया। इस पॉलिसी की वजह से चाइना में तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला। आज भी पार्टी ही लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग को गाइड करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इज मेंटेनिंग national unity and social stability. China is a vast country with diverse ethnic groups and regions. The party promotes national integration through centralized leadership and policy coordination. It works to prevent separatist movements, maintain public order, and ensure political stability. Stability is considered essential for economic development and national progress. चाइना एक बहुत बड़ा देश है जहाँ अलग अलग एथनिक ग्रुप्स और अलग अलग रीजन्स हैं। ठीक है, सीपीसी देश में एकता बनाए रखने के लिए सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करती है। पार्टी किसी भी तरह के सेपरेटिस्ट मूवमेंट देश से अलग होने की मांग को रोकती है, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिक्स करती है। चाइना के मुताबिक देश की आर्थिक तरक्की के लिए ये स्टेबिलिटी सबसे ज़रूरी है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस एजुकेशन, कल्चर एंड मीडिया. Educational institutions promote socialist values and patriotism. Media organizations operate under party supervision and are expected to support national policies. Through these institutions, the party seeks to shape public opinion and strengthen its legitimacy among citizens. सीपीसी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एजुकेशन, कल्चर और मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, कॉलेजेस का इस्तेमाल सोशलिस्ट वैल्यूज़ और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। देश के सभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की स्ट्रिक्ट सुपरविजन और वो सेंसरशिप के अंदर ही काम करते हैं ताकि पार्टी के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। Despite its achievements, the Communist Party faces various challenges. Rapid economic growth has created social inequalities and regional disparities. Corruption has also been a significant concern. To address these issues, the party has launched anti-corruption campaigns and governance reforms. Globalization, technological changes, and rising public expectations continue to test the party's ability to adapt and govern effectively. सोशल इनइक्वालिटीज़ और रीजनल डिस्पैरिटीज़. चाइना ने बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ तो किया है, लेकिन इसकी वजह से अमीर गरीब का गैप और क्षेत्रीय असमानता, कुछ इलाके बहुत अमीर और कुछ पीछे रह गए हैं. करप्शन, भ्रष्टाचार पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है. इसको ख़त्म करने के लिए पार्टी ने बड़े पैमाने पर एंटी करप्शन कैंपेन्स और गवर्नेंस रिफॉर्म्स शुरू किए हैं. आज के दौर पे ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और लोगों की बढ़ती हुई उम्मीदों ने पार्टी के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. ये सब चीज़ें तय करती हैं कि पार्टी आगे बदलते वक्त के साथ कितने अच्छे से अडेप्ट और गवर्न कर पाती हैं. Critics argue that the one-party system limits political competition and restricts certain freedoms. Supporters, however, believe that the party has provided stability, economic growth, and national strength. These differing views make China's political system an important subject in comparative politics. Critics मतलब
आलोचकों का कहना। जो लोग इस सिस्टम के खिलाफ हैं उनका मानना है कि वन पार्टी सिस्टम की वजह से देश में कोई पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं बचती। ये सिस्टम लोगों की आज़ादी को भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट करता है। दूसरी तरफ पार्टी के सपोर्टर्स का मानना है कि सीपीसी ने ही चाइना को स्टेबिलिटी, ज़बरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ और राष्ट्रीय ताकत दी है। इन्हीं दोनों तरफ के अलग अलग विचारों की वजह से चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। In conclusion, the Communist Party of China is the central pillar of the Chinese political system. It provides political leadership, directs economic development, maintains social stability, and shapes national policies. Despite facing challenges, the party remains the dominant force in Chinese governance and continues to influence China's position in global politics. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहाँ के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे मुख्य खंभा मतलब सेंट्रल पिलर है। ये पार्टी देश को पॉलिटिकल लीडरशिप देती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डायरेक्शन दिखाती है, सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखती है और देश की पॉलिसीज़ को शेप करती है। इतनी सारी चैलेंजेस का सामना करने के बाद भी सीपीसी चाइना की गवर्नेंस में सबसे पावरफुल फोर्स बनी हुई है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में चाइना की पोजीशन लगातार मजबूत कर रही है। आज यूनिट वाइज तो हमारी ये वीडियो ख़त्म हो रही है, पर नेक्स्ट वीडियो जो होगी इस सब्जेक्ट की वो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आपको मिल जाएगी, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।